अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रैशनल नंबर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास एंड आल्सो फॉर 10th क्लास। यूँ तो जब आप रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखोगे तो इट सीम्स सो सिंपल। आपको लग रहा होगा कि ये वो सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। अगर हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखेंगे, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इट इज सिंपल कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q। या आपने अपनी अपनी रेस्पेक्टिव स्कूल्स में पढ़ा होगा वायर q इज नॉट इक्वल टू 0। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म वायर q is not equal to 0 and also p and q are integers. P and q are integers. We call such type of numbers as rational numbers. Okay, तो you may have gone through this definition या आप लोगों ने फ्रॉम यूर 5th क्लास और 4th क्लास से सुनी है ये डेफिनेशन और आप लोगों ने पढ़ी भी है। लेकिन व्हेन वी गो फॉरवर्ड, जब आप इसमें आगे जाते हो तो आपके पास कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे आते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक सिंपल रैशनल नंबर्स। हमारे पास है 1/2, ये एक रैशनल नंबर है। वी हैव 1/3, वी हैव 1/4, वी हैव 1/5, okay, we have 1/6, we have 1/7, we have 1/8, we have 1/9 and we have 1/10. Okay, these all numbers follow this definition. These numbers are of the form p by q. Q is not equal to 0. P comma q belong to z. That means these are integers. Okay, now let us see what is the decimal representation. Decimal representation of these numbers. Decimal representation. Okay, अगर आप इन नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो वो क्या होगी, व्हाट विल बी द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। पहले हम देखेंगे ये किन के बराबर होंगे। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/2, यू ऑल नो इट इज 0.5। ओके, 1/3 it is 0. You can also see this is 3, sorry, it is 1 3. Okay, we'll take 0, we'll take 0 point and 3 3 are 9, then again 1. This implies 0.33, it will be 0.3 bar. We call it as 0.3 bar. And this is 1/4, it is 0.25. 1/5 it will be 0.2. Here it is 1/6, it will be 0.16 bar. Okay, 1/7 it will be 0.142857 and continue, it will be bar. 1/8 will be 0.125. Okay, 1/9 will be 0.16 bar and 1/10 is 0.1. Got it? In decimal representation we write them as this. Okay, now what we call this decimal representation? See, यहाँ पे अगर आप बेटा देखोगे, इसकी तरफ अगर आप देखोगे 0.5 तो इट स्टॉप्स देयर। ओके, तो इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, स्टॉप। ओके, व्हाट डज स्टॉप मीन? दैट मीन्स ये यहाँ पे रुक जाती है। ओके, तो इन अदर वर्ड्स मैथमेटिकली व्हाट वी कॉल दिस स्टॉप एज
we call it as terminating. Terminating. This is a terminating decimal representation. Okay. Now 1 upon 3, it is 0.333333, so on. Okay. So it gets repeated. It gets repeated. That is why I wrote it like this, 0.3, the number which gets repeated. Okay, we call it, write it as 0.3 bar. Okay beta. So this is continuous. After the decimal, it goes on and on, 0.3333. That means it gets repeated. It gets repeated. It is, that means it doesn't stop. It doesn't stop. Doesn't stop. ये stop नहीं हो रहा है क्योंकि ये जा रहा है continuously. तो जब ये stop कर रहा था, at that time we call it as terminating. और जब ये stop नहीं करेगा, जब ये नहीं रुकेगा, तो we call it as non-terminating. Non-terminating. और क्योंकि it also gets repeated, है ना, 3 के बाद 3 आता है, फिर 3, फिर 3, फिर 3, that means ये repeat हो जाता है. So we call it as, क्योंकि ये stop नहीं होता है, तो on that basis we call it as non-terminating. और because it gets repeated, है ना, 3 के बाद 3, 3, 3, so we wrote here 0.3 bar. So non-terminating, repeating, or you can call it as recurring. It has a non-terminating, repeating, or recurring decimal representation. This is the decimal representation. Okay. Now 0.25 as this, क्योंकि ये stop हो जाता है बेटा, तो you know that whose decimal representation stops, that is called a terminating decimal representation. तो also here ये भी stop हो जाता है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, terminating decimal representation, जैसे इसकी है terminating decimal representation. और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी 0 पॉइंट, ये ऐसे आता है 0.161666, तो यहाँ पे ओनली 6 रिपीट होता है. गॉट इट, 6 रिपीट होता है, तो इसको हम लिखेंगे 0.16 बार. ओके. इट आल्सो डजंट स्टॉप, तो इसकी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ओके. तो यहाँ पे अगर आप 1/7 की डेफिनेशन देखो, 1/7 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखोगे, इट इज 0.142857, 0.1428. तो दिस पार्ट गेट्स रिपीटेड 0. ये यहाँ से फिर आएगा 142857 and so on. That is why we write it as 0.142857 bar. This also doesn't stop, तो इसकी भी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग. लाइकवाइज दिस, अगर आप 0.125, 1/8 इट गेट्स, इट इज इक्वल टू 0.125, तो दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग, तो इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो टर्मिनेटिंग है. ओके. देन 1/9, just what is the decimal representation of 1/6? It is 6, 1 or 6.1, it is 6, then comes 4, 6, 6 are okay. So it is same. What will be the decimal representation? I think it is 0.13. Let's see. 0. I think it will be 0.1 bar. Let us see. We have to divide 1 by 9. 0, point, 0. This is decimal. Instead of this dot decimal, we put here 0. So it will be 0.1.
then again it will be 9, then 1. So it will be, sorry, it will be 0.1 bar, 0.1 bar. Decimal representation of this is 0.11111, and it will be 0.1 bar. Okay, and 1 by 10 is 0.1. So this is also non-terminating. This doesn't stop. So इसकी भी decimal representation है what? Non-terminating repeating. Okay बेटा, तो this stops, तो इसकी होगी terminating. Okay, तो this is all about the decimal representation, not all about something about. Okay बेटा, लेकिन अब आपको क्या यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इफ यू विल सी इनके अगर आप डिनोमिनेटर्स देखोगे बेटा, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो जो टर्मिनेटिंग है उनके हम डिनोमिनेटर्स को ऑब्जर्व करेंगे. देखो बेटा, 1/2 ये टर्मिनेटिंग है, ठीक. 1/4 दिस इज टर्मिनेटिंग. 1/5 दिस इज टर्मिनेटिंग. और कौन है टर्मिनेटिंग? ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 1/8, 1/8 दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. और 1/10, 1/10 दिस इज आल्सो ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, तो बेटा अगर आप इनके डिनोमिनेटर्स देखोगे, देखो अगर हम डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स निकालेंगे, ओके, इसके जो फैक्टर्स हैं इट इज 2, है ना. तो 2 and 1 is the factor of every number. Leave 1 aside. तो इसका फैक्टर जो है एक्सेप्ट 1, तो दैट इज 2, है ना. 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी 1/2 into 5 raised to power 0. Okay, 1/4 we can write it as 1/2 power 2 into 5 raised to power 0. Okay, let's take this one as 5 raised to power 0. It is 2 1 or 2. 5 raised to power 0, it is 4 1 or 4. This can be written as 2 raised to power 0 into 5. Okay, this can be written as 1/2 raised to power 3 into 5 raised to power 0. This can be written as 1/2 raised to power 3, 2 into 5 raised to power 1. Sorry. So if you will see the denominators of these terminating decimal numbers, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग है. तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखोगे इनके डिनोमिनेटर्स में या तो 5 इनका फैक्टर है या दोनों है. देखो इसका फैक्टर ओनली 5 है. ओके, तो इसके दोनों है, 10 के दोनों है, 2 into 5, ठीक. और इसका ओनली 2 है, ठीक. तो कोई भी नंबर फ्रॉम दिस यू कैन सी एनी नंबर of this form p upon, अगर q के बदले in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, अगर q इस फॉर्म का होगा p upon q, q will be of this form, q will be of this form 2 raised to power m into 5 raised to power n. तो बच्चा what you have to keep in mind, उस टाइम ये क्या होगा, it will be a terminating decimal. इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. इस वाले नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. गॉट इट बेटा? अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग इज ऑफ 2 टाइप्स बेटा. आई होप कि ये वाला आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. इफ नॉट यू कैन मेंशन in the comment section. I will once again I can repeat it 5 to 10 times for you until you will fully understand. तो बेटा this was how you can see whether it is a terminating or non-terminating. Got it? तो ये
याद रखने की जो बात है दैट इज, अगर इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज क्यू, क्यू अगर इस फॉर्म में होगा whose factors will be of the form only 2 and 5. ओके, तो 2 and 5 अगर यही दो इसके फैक्टर्स होंगे, क्योंकि ठीक पावर कितना भी हो 2 रेज पावर m और 5 रेज पावर n, ठीक, देन इट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बेटा, देखो तो आपने यहाँ पे देखा कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है किनकी, रैशनल नंबर्स की, तो वो क्या है, या तो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये याद रखना, ये आपको याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एनी नंबर whose decimal representation is, ये याद रखना, any number whose decimal representation is non-terminating, non-repeating, ये याद रखना, non-terminating, non-repeating, it is NTNR, non-terminating, non-repeating। तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, शाबाश बेटा, इज दैट रैशनल नंबर, क्या वो रैशनल नंबर होगा, राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन। उस नंबर को हम क्या कहते हैं जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, उसको कौन सा नंबर हम कहते हैं, और उसकी आपको एक एग्जांपल भी देनी है। ओके बेटा, सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द कमिंग लेक्चर आई विल टेल यू, अगर आपको पता नहीं होगा यू तो आई विल टेल यू। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द कमिंग लेक्चर हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पास ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, हाउ कैन रिप्रेजेंट a decimal how can you represent a decimal number in the form of a p by q, in the form p by q, okay, how can you represent a decimal number in the form of p by q, इस फॉर्म में उसको p by q की शक्ल में आप कैसे लिख सकते हो, so to be continued। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, you already know to subscribe and share the information। अगर आपके लिए ये लगी कि it is fruitful for us, then you can share it, okay। Till the next lecture, have a good time।